پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میرے اس نئے تحریر کردہ ناول ولیم اور مرینڈا ایک رومانوی داستان کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میرے اس نئے تحریر کردہ ناول کی تیسری اور آخری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 21 سے لے کر صفحہ نمبر 29 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنے اس نئے ناول کی تیسری اور آخری ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ جبکہ لیڈیا اس وقت اپنے والد البرٹ کی آنکھوں میں جھانکتی رہی، رقص کرنے کے اس سلسلے کے دوران ہی البرٹ کے انہی بزرگ خدمتگار نے ڈائننگ ٹیبل کی سجی ہوئی میز پر ان کا کھانا کھول دیا، جس پر لیڈیا خوشی سے چلائی کہ لو جی، کھانا آ گیا، اور پھر وہ اپنے والد کے رقص کو ادھورا چھوڑ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بھاگ پڑی، جبکہ ولیم اور مرینڈا بدستور بے خیالی میں ایک دوسرے سے نظریں ملائے ہوئے اپنا رقص جاری رکھنے میں مشغول رہے۔ پھر لیڈیا نے اپنی مہمان مرینڈا کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے اسکارگو کا ایک ٹکڑا اٹھا کر مرینڈا کو دکھاتے ہوئے زوردار آواز میں کہا، ہماری مہمان کے اعزاز میں اسکارگو۔ اسکارگو ایک فرانسیسی کھانا ہے جس میں پکے ہوئے گھونگھوں کو عام طور پر مکھن کی چٹنی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ولیم اور مرینڈا اپنا رقص ختم کر کے ایک ساتھ کھانے کی میز پر آ کر بیٹھ گئے، اور اس بات پر مرینڈا نے دکھی دل کے ساتھ لیڈیا کا شکریہ ادا کیا، اور پھر مرینڈا نے لیڈیا کی دی ہوئی وہ چھوٹی سی کینچی نکال لی، اور پھر مرینڈا اس چھوٹی سی کینچی کی مدد سے اپنے گھونگھے کے شیل میں سے اپنا گھونگھا کھانے کے لیے نکالنے لگی۔ مرینڈا کی یہ حرکت دیکھ کر لیڈیا کے والد البرٹ سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے مرینڈا کو تقریباً ڈانٹتے ہوئے مخاطب کیا اور کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں، جبکہ لیڈیا اپنے والد کے باہنی طرف والی کرسی پر بیٹھے ہوئے اپنی گردن جھکائے ہوئے مرینڈا کی اس بے عزتی کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اس وقت تک مرینڈا اپنی اس کینچی کی مدد سے اپنے گھونگھے کے اس شیل میں سے اپنا گھونگھا باہر نکال چکی ہوئی تھی۔ تو پھر لیڈیا نے اپنی گردن بلند کی اور مرینڈا کی اس بے عزتی پر کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور پھر طنزاً سب سے کہنے لگی کہ یہ دیکھو، یہ لڑکی گھونگھے بھی ناخن کاٹنے والی کینچی کی مدد سے کھاتی ہے۔ ولیم، جو کہ مرینڈا کے برابر والی کرسی پر اور اپنے والد کی داہنی طرف والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے پہلے تو مرینڈا کو اور پھر اس نے اپنی بڑی بہن لیڈیا کو حیرت سے دیکھا۔ لیڈیا کے اس طرح سے مسلسل طنز بھرے زوردار قہقہوں کے ساتھ ہنسنے پر لیڈیا کے والد البرٹ اور ولیم دونوں حیران و پریشان رہ گئے، اور البرٹ نے اپنی بیٹی لیڈیا کے ان مسلسل قہقہوں اور اس کے اس دیوانہ پن کو حیرت اور پریشانی کے عالم میں دیکھتے ہوئے زیر لب کہا، اف میرے خدایا! اور پھر لیڈیا اپنے ان مسلسل قہقہوں کے درمیان میں اپنے والد البرٹ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ ابو، کیا اب بھی آپ اس لڑکی کے ساتھ رات کا کھانا پسند کریں گے؟ اور اس کے ساتھ ہی لیڈیا نے میز پر رکھا ہوا اپنا اسکاچ وسکی کا بھرا ہوا ایک پیگ اٹھا لیا اور اسے غٹا غٹ پینے لگی۔ تو پھر مرینڈا البرٹ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگی، سر، میں بھی گھونگھوں کو کینچی کی مدد سے کھانے کی عادی نہیں ہوں۔ مجھے تو آپ کی بیٹی لیڈیا نے اصرار کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں یہ گھونگھے اس کی دی ہوئی اس کینچی کی مدد سے کھاؤں، تو پھر میں آپ کے گھر کے یہ اصول کیسے توڑ سکتی تھی؟ جب البرٹ نے مرینڈا کی یہ بات سنی
तो उन्होंने अपनी बेटी लिडिया को इंतहाई नफरत से देखा और कहा कि क्या तुम जानती हो कि तुम कितनी बदबख्त हो। और ये कहकर एल्बर्ट अपनी कुर्सी से उठे और गुस्से से अपना खाना यूं ही छोड़कर इस ड्राइंग रूम से बाहर चले गए। अब विलियम की बारी थी और उसने अपनी बहन लिडिया की तरफ नफरत से देखते हुए कहा कि क्या तुम इस कदर नीचे भी गिर सकती हो। इस बात पर हंसती हुई लिडिया के चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार हो गए और फिर लिडिया ने इंतहाई सड़े हुए लहजे में मिरिंडा को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए कहा कि क्या अब तुम मुतमईन हो गई हो? क्या तुम यही सब कुछ चाहती थी कि तुम हमारे ख़ानदान को तबाह कर दो? तुम तो ये भी नहीं जानती कि आज कौन सा दिन है। इसके बाद वो गुस्से से भड़क कर इंतहाई भयानक अंदाज में अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और चिल्लाकर कहने लगी कि आज हमारी वालिदा मरहूमा की सालगिरह का दिन है जिसे तुमने बर्बाद कर दिया है। ये सुनकर पहले से दुखी मिरिंडा मज़ीद दुखी हो गई और फिर वो अपनी इस कुर्सी से उठ खड़ी हुई और वो वहाँ से चली गई। विलियम भी अपनी बहन लिडिया के इस दीवानापन को देखते हुए अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और मिरिंडा के पीछे पीछे चल पड़ा। मिरिंडा गमज़दा होकर डाइनिंग हॉल से निकलने के बाद एल्बर्ट के घर से बाहर चली गई। विलियम मिरिंडा को रोकने के लिए उसके पीछे चल पड़ा और उसे आवाज़ देकर रोकते हुए कहा, बराए मेहरबानी आप रुक जाएं, आपके पास ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है। जिस पर मिरिंडा ने इंतहाई दुखी दिल से कहा कि आप मुझे छोड़ दें, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। मिरिंडा ने मज़ीद ये भी कहा कि ये पहली दफ़ा तो नहीं है, मैं तो हर दफ़ा ख़ुद को संभाल लेती हूँ। जिस पर विलियम ने मिरिंडा से इंतहाई मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, लेकिन मैं तो ये शाम आपके साथ ही गुजारना चाहता हूँ। जिस पर मिरिंडा ने इंतहाई दुखी दिल से विलियम को कहा कि आप ये शाम अपने घर पर अपने वालिद के हमरा गुजारें क्योंकि वो तो अभी तक हयात हैं। जिस पर विलियम ने मिरिंडा की बात को ना समझते हुए हैरत से पूछा कि ये आप किस बारे में बात कर रही हैं। इस पर मिरिंडा ने विलियम को अपनी दास्ताने गम सुनाते हुए बताया कि वो भी कभी विलियम के जैसी ही शाहाना अंदाज में अपनी ज़िंदगी इसी शायाना शान तरीके से गुजारा करती थी और वो हमेशा से एक बेघर लड़की नहीं थी। ये तो सब कुछ तब हुआ जब उसके वालिदैन इस जहान फ़ानी से कूच कर गए थे। उस वक्त उसकी उम्र महज 16 बरस की थी, तो तब ही से वो अपने घर की छत के साए से महरूम हो गई थी और फिर इसके पास कुछ भी नहीं बचा था। मिरिंडा ने विलियम को ये भी बताया कि उसे इन आदाब का भी पहले से इल्म है कि घोंघों को कैंची की मदद से नहीं खाया जाता है। ये सब कुछ कहने के बाद गमज़दा मिरिंडा वापस जाने के लिए मुड़ी तो तब विलियम ने मिरिंडा को दोबारा जाने से रोक लिया और गमज़दा अंदाज़ में मिरिंडा से कहा कि मैं आपके बारे में मज़ीद भी कुछ जानना चाहता हूँ। और फिर विलियम ने मुस्कुराते हुए मिरिंडा से कहा कि अगर आप चाहें तो मुझसे अपना क्रोसोन वाला बदला भी ले सकती हैं। इसके बाद विलियम ने अपना कोट उतारकर मिरिंडा को पहना दिया, जिससे मिरिंडा खुश हो गई और फिर विलियम मिरिंडा को अपने घर में वापस ले आया। विलियम और मिरिंडा उस रोज़ अपने घर में आने के बाद रात भर क्रोसोन खाते रहे और फिर वो दोनों सारी रात एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें करते रहे। और फिर वो सुबह आ गई जब मिरिंडा को एल्बर्ट के इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना था। जब मिरिंडा एल्बर्ट के घर से बाहर निकली तो विलियम ने उसके पीछे से आकर उसे आवाज़ दी और उसे रुकने के लिए कहा,
जिस पर मिरिंडा ने विलियम को समझाते हुए कहा कि आप मुझसे इतना प्यार ना करें क्योंकि हम इसे निभा नहीं सकते, इसलिए कि हम दोनों दो मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग हैं। जिस पर विलियम ने बेहद मोहब्बत से मिरिंडा के खूबसूरत चेहरे को थामते हुए कहा कि नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये मेरी गलती थी कि मैंने इस किताब को उसके सर्वक से जांच रहा था। मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मेरे वालिद अभी तक हयात हैं, जो मेरी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर रहे हैं, वरना मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं इन क्रोसोन को ख़रीद सकूं। और आप तो दुनिया की वो सबसे पहली लड़की हैं जिन्होंने सिर्फ मुझे पसंद किया है और जिन्होंने मेरे वालिद की दौलत को नहीं देखा, और फिर आप ही तो वो वाहिद ऐसी लड़की हैं जो मेरे लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार थी। अभी विलियम मिरिंडा से ये बातें कर ही रहा था कि इस दौरान विलियम के वालिद एल्बर्ट भी अपनी छतरी उठाए हुए इन दोनों की गुफ्तगू के दरमियान में पहुंच गए, जिस पर मिरिंडा ने अपना मुंह छुपाते हुए शर्म से एल्बर्ट को देखते हुए माज़रत ख्वाहाना अंदाज में उनसे माफ़ी मांगी। जिस पर एल्बर्ट ने मिरिंडा को कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब कल रात से तुम गायब थी तो मैं तुम्हें तलाश करने के लिए निकला हुआ था। फिर एल्बर्ट ने करीब से गुजरती हुई नाराज़ लिडिया को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया, लेकिन लिडिया मिरिंडा और विलियम को देखकर अपने वालिद एल्बर्ट के पास नहीं आई। तो फिर एल्बर्ट ने दूर से ही लिडिया को आवाज़ देकर पूछा कि मेरी कॉफ़ी और क्रोसोन कहाँ हैं। तो फिर लिडिया अपना बुरा सा मुंह बनाकर घर के अंदर चली गई और फिर एल्बर्ट भी लिडिया के पीछे दौड़ते हुए घर के अंदर चले गए, जिस पर विलियम और मिरिंडा खिलखिलाकर हंस पड़े। और फिर विलियम और मिरिंडा एक दूसरे को मोहब्बत भरी नज़रों से देखने लगे। विलियम मिरिंडा को देखते हुए ये सोचने लगा कि मोहब्बत में बेघरी और अशराफियापन का कोई अंसर नहीं होता और ना ही कोई कैद होती है। प्यार किया नहीं जाता, बस हो जाता है। मोहब्बत करना हर एक का हक है, लेकिन इसके लिए आपको अपना दिल खोलना पड़ता है। ख़त्म शुद्ध।